she got happy initially thinking, oh I lost my virginity. अपने दोस्तों को कॉल करते हो मेरा hymen टूट गया guys, I'm bleeding and they're celebrating. A girl took her own virginity. She thought that she's academically behind in intimacy, not emotionally, not romantically, but academically behind. Like she literally treated intimacy the way people treat IIT exams. And the worst part is her own friends, they convinced her indirectly to do this. मतलब ऐसे हो रहा था that everybody around her, they were having these crazy, wild experiences at the age of 15. People were having these weird fantasy stories and she could barely make eye contact with any guy, and she thought that something is wrong with her. You might have clicked on this video thinking that this is some super spicy story time. Maybe it is spicy for some of you guys, but for me this is very embarrassing and a very sad story time. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well and are also in good health and wealth. If you're new here, hi, my name is Sonali, and if you're old, well, you know who I am. ये जो story है ये मेरे एरिया में हुआ and I know this girl, okay, like I do not directly know her but I know her via and मैं जो एरिया में रहती हूँ मुंबई का, the area is, it's like a small world, okay, यहाँ के colleges, schools, everybody knows each other. Like अगर मैं किसी ने मुझे आके बोला अरे ये इसकी बेटी इसकी बहन, I will be like हाँ ऐसे टाइप का सिचुएशन है, ठीक है. अब कल क्या हो गया, मैं मार्केट गई थी and I met one of my old neighbors and we were just talking about स्कूल में से कितने लोग की शादी हो गई, कितने लोग का बच्चा हो गया, ये सब हम लोग बात कर रहे थे and we were both in the same school, okay. तो she told me अरे तेरे को पता है क्या ये एक लड़की का क्या इंसिडेंट हुआ करके, and I'm like क्या इंसिडेंट हुआ, and then she narrated me the whole story. फिर मैंने obviously confirm किया और sources से, and when I heard the whole story I just I don't know, I was embarrassed but I also felt very sad because I was like भाई peer pressure में आके इंसान क्या क्या करता है, like just to fit into this society, just to show that भाई मैं कितनी cool हूँ, भाई मैं कितनी sexually advanced हूँ, like oh my god मैं तो कितनी wild हूँ, मैं तो कितनी bold हूँ, ये सब proof करने के लोग क्या क्या करते हैं. And the thing is a lot of teenagers watch my video and I'm pretty sure you guys are in a similar crossroad. Your hormones are all over the place. You guys might want to experiment with a lot of things. You all might want to try a lot of things out of peer pressure, watching things online, I don't know, but hopefully this story will make you think before taking such bizarre actions. So we're gonna call this girl Shraddha. Shraddha का last year 10th हुआ रहता है and after that she enters junior college. मेरे area में एक junior college है जहाँ पे 11th 12th के लिए लोग जाते हैं and then graduation के लिए they go to some other college. अब ये junior college में ना बहुत सारे किस्से हुए जो मुझे मालूम है, तो मैं बहुत सारा story times बना सकती हूँ, but I particularly chose this topic because when I heard about it I was like bro why are people like falling in such trap. ठीक है, तो ये जो लड़की है we're gonna call her Shraddha. Now Shraddha she entered junior college, right, 11th standard, तो 16-17 की एज में होगी. जितना मैं उसके बारे में जानती हूँ she has this regular schmegular nerdish vibe. Like she is someone who is talkative, like whenever I meet her and everything वो बात करती है, चटर पटर करती है, but also बहुत जल्दी वो awkward हो जाती है, as if अपने दुनिया में वो गई है किधर तो, and then again you have to snap her back into reality. I won't say that she is like this it girl or like she loves being the hot it girl. She's very comfortable being this awkward nerdy girl and like this chill girl जिसको दुनिया की कुछ पड़ी नहीं है. तो अभी कैसा होता है वो 11th enter करती है, right, and this junior college she meets a lot of people there. कुछ उसके स्कूल के होते हैं because as I said schools भी यहाँ पे काफी सारी है और एक junior college है, तो she meets a lot of people from her school and then she meets many people from other schools. तो वहाँ पे सबका reunion हो जाता है, एक ही एरिया में है and एक ही कॉलेज में आ गए and everything, ठीक है. अब initially she finds her circle, she's very happy, she's like अब मैं कॉलेज में हूँ, अब मेरा 11th होगा 12th होगा. Now the fun part begins, because 10th में इतने पापड़ बेले board exams हो गया, like now I just want to relax and enjoy. And 11th I think 11th is that phase of your life where you want to enjoy, क्योंकि opposite 12th में boards आती है and again you do not want to like take that pressure so soon. So 11th standard is that phase where you want to just chill and enjoy, ठीक है. तो initially things are very good, उसके क्लास में उसका एक सर्कल बन जाता है, उन लोग कैंटीन में साथ में लंच करते हैं, साथ में कॉलेज जाते हैं, कॉलेज के बाद उनकी मूवीज की प्लान बनती है, दिस दैट एंड एवरीथिंग. इनिशियली थिंग्स आर गुड. अब धीरे धीरे कैसे होता है अभी कैसा है, इट्स लाइक
कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गया, खून गर्म है, यू नो, तो ये सारी चीजें बहुत होती है वो टाइम में. आई फील आई एम स्पीकिंग लाइक अ 50-year-old woman, but sometimes I feel like I'm an old soul, so please excuse me. But I feel like that phase is when, you know, all these things happen: crushes, dating, one-sided love, love triangle, love pentagon, क्या क्या होता है क्या मालूम. तो दिस इज दैट फेज. ओके, अब क्या होता है, श्रद्धा को एक बंदे पे क्रश रहता है. we're gonna call him आरव, एंड शी इज लाइक, यू नो, शी इज लाइक वेरी लाइक, यू नो, उसको ना वो ऐसा बहुत ऐसा फैसिनेशन में देखते हैं, लाइक, यू नो, पपी लव करके. लाइक अगर तुम्हारी लाइफ में कभी तुमको किसी के ऊपर पपी लव हुआ है, लाइक दिस बचपन का प्यार या फिर दिस टीनेज लव, you will understand what I'm trying to say, because you will look at that person like that and you will just naturally blush. तो श्रद्धा को आरव को देख के वो फीलिंग आती है, एंड आरव को भी कितना पता रहता है कि हाँ भाई श्रद्धा को मेरे लिए फीलिंग्स है, तो दे टॉक एंड एवरीथिंग. फिर आसपास लोग चिढ़ाते हैं कि लाइक, यू नो, क्या आरव तुझे देख रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि नो कैंटीन में उन लोग आसपास बैठे तो ना थोड़ा सा छेड़खानी होता है कि देख 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 आज वो तुझे देख रहा था, आज नो वो तुझे देख रही थी, ये सब चलता रहता है. ठीक है, सो दे आर इन दिस टॉकिंग फेज वेयर दे आर लाइक चैटिंग, दे आर एक्सचेंजिंग नंबर्स, इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है उनका. ठीक है, अब एक दिन क्या होता है, ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन होता है जिसके बाद श्रद्धा के अंदर एक इनसिक्योरिटी क्रीप इन हो जाती है. दे आर ऑल सिटिंग, श्रद्धा एंड हर फ्रेंड्स, एंड यू नो कुछ एडिशनल लोग भी आते हैं, बिकॉज कभी कभी कैसा होता है, हम हमारे ग्रुप में बैठते हैं बट हमारे क्लास के और भी बैचमेट्स रहते हैं, राइट. सो वी ऑल्सो वेलकम देम कि आ जाओ भाई बैठो साथ में खाते हैं, तो वो होता है. तो उन लोग सब ऐसा ग्रुप में बैठे रहते हैं, एंड यू नो ऐसी इधर उधर की बातें होती रहती है, कौन किसको डेट कर रहा है, कौन किसकी एक्स है, कौन किसका प्रेजेंट है, कौन किसका पास्ट है, ये सब चलता रहता है. एक बंदी टॉपिक निकालती है दैट ओ माय गॉड, यू नो, आई फाइनली डिड इट गाइज, आई फाइनली डिड इट विद माय बॉयफ्रेंड एंड इट वाज सो गुड, इट वाज सो एक्सक्विजिट, ये वो, एंड एवरीबडी इज एक्साइटेड, दे आर लाइक ओह क्या बात है, वेलकम टू द क्लब, ऐसा बोल के ताली मारते रहते हैं. तो श्रद्धा को इनिशियली समझता नहीं कि भाई what she did what. तो श्रद्धा पूछती है कि भाई what you did, ऐसा क्या किया तूने, एंड वो श्रद्धा को देख के बोलते है bro I finally like lost my V card, you know, और ऐसा वो हंसने लगते हैं. ठीक है, एंड श्रद्धा इज लाइक V card virginity, शी लाइक या फाइनली लॉस्ट इट. ओ माय गॉड, मैं तो बहुत स्ट्रेस में आ गई थी कि ना मैं कॉलेज एंटर कर रही हूँ और मैं अभी तक वर्जिन हूँ करके. आई एम सो हैप्पी इट फाइनली हैपेंड करके. एंड फिर सब आसपास के लोग क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, कैसा था, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड. देन और 2-3 लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते कि हाँ मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ किया था. एक कोई तो बोलते कि हाँ मैं तो कोई बम्बल डेट पे गई थी. बम्बल डेट, बहन चो, तुम लोग 16-17 साल के हो, क्या बम्बल डेट, पढ़ाई करो जाके, केमिस्ट्री लैब पे फोकस करो, व्हाट इज दिस. तो ये सब बातें होती रहती है, एंड श्रद्धा फील्स लाइक वो तो कोई गलत जगह पे आ गई, बिकॉज नीदर हैज शी लॉस्ट हर वी कार्ड, नीदर डज शी हैव अ बॉयफ्रेंड, neither does she go on dates with guys, you know, like on Bumble, Tinder, anything. So at this point she feels like oh my god, like 11th में आके ये सब करना था क्या, मेरे को लगा कि धीरे धीरे ये सब होगा. तो वो फटक से बोलती थी कि मतलब इतना बड़ा क्या फर्स्ट है, लाइक ठीक है ना धीरे धीरे होता है करके. एंड एवरीबडी दे जस्ट लुक एट श्रद्धा एंड दे आर लाइक ब्रो तू ऐसे क्यों बात कर रही, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है क्या. एंड शी लाइक नहीं मैं आरव से बात कर रही हूँ बट अभी तक सिर्फ टॉकिंग स्टेज है. तो फिर उसके बाकी फ्रेंड्स बोलते कि यार क्या टॉकिंग स्टेज है, अभी तक तुम लोग को यू नो मिलना चाहिए था, यू गाइस शुड हैव लाइक बीन लाइक दो जिस्म एक जान, ये क्या इतना स्लो क्यों ले रही है, ये वो करके. एंड श्रद्धा इज लाइक बट इंटिमेसी शुड बी वेरी स्पेशल राइट, लाइक मेरे को स्लो ही लेना है, लाइक व्हाई शुड आई टेक इट फास्ट. तो कोई तो एक लड़की उसको पूछती है कि वेट आर यू अ वर्जिन, एंड श्रद्धा बोलती है हाँ, लाइक वो बहुत नॉर्मली बोलती है हाँ करके, एंड सब हंसने लगते हैं. नाउ इफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड दिस पीयर प्रेशर, दिस ग्रुप बुलिंग वेयर you know you say something which you feel is absolutely normal but तुम्हारे आसपास के लोग हंसने लगते हैं, you know how it feels right, you will literally be like oh my god, like मैंने ऐसा क्या बोल दिया, एक तो मैं सही हूँ एंड सब लोग गलत है, या फिर सब लोग सही है मैं गलत हूँ करके. तो श्रद्धा को बहुत awkward लगता है. एंड ऐसे ही ना उसकी जो खास दोस्त लोग भी रहते हैं, her like bestest friends, even they make fun of her कि fuck bro तो अभी तक वर्जिन है, like इतना हॉट फिगर है तेरा, तू क्या कर रही है वर्जिन होके. मतलब हॉट फिगर एंड वर्जिनिटी का क्या लेना देना है, मेरे को तो वो समझ में नहीं आता है, बट वॉट एवर, ठीक है, वी विल ट्राई टू इग्नोर देम. अब ये सब होने के बाद श्रद्धा रात को घर पे आती है एंड वो बहुत स्ट्रेस में रहती है. ठीक है, शी इज लाइक oh my god, like what is this, like why is everybody you know judging me this way. अभी तुम लोग मुझे पूछोगे सोनाली तेरे को इतना डिटेल में कैसे मालूम ऐसा हुआ वैसा हुआ करके. मैंने तुम लोगों को बोला राइट, मैंने और सोर्सेस से कंफर्म किया, एंड जो एडिशनल सोर्सेस से कंफर्म किया उसमें से एक बंदी उसकी सगी बहन है. तो शी लिटरली टोल्ड मी दिस एंड आई नो हर. तो मैंने लिटरली बोला था कि मैं स्टोरी टाइम पे बात करने वाली हूँ, एंड चलो ब्रो बात कर, मेरी बहन जैसा बेवकूफी बाकी लड़की लोग ना करे करके. सो दिस इज हाउ आई नो इट एक्सप्लिसिटली. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन.
अब वो घर पे आती है, बहुत स्ट्रेस में रहती है, वो रोती रहती है, एंड तभी श्रद्धा की बहन, द वन हु नरेटेड मी इन डिटेल और डेप्थ में, वो रूम में आती है एंड वो श्रद्धा को पूछती है कि भाई क्या हो गया करके। श्रद्धा की बहन को हम लोग पूनम बुलाएंगे। अब पूनम इज लाइक आस्किंग श्रद्धा व्हाट हैपेंड एंड शी स्टार्ट्स क्राइंग, शी लाइक दीदी सब लोग मेरे को बहुत जज किए, मेरा वर्जिन होना गलत है। एंड पूनम स्ट्रेस में आती है कि बहन तुझे ये सब कौन सिखा रहा है, इट्स नॉट एट ऑल रॉन्ग प्लीज, लाइक। एंड पूनम इज लाइक अ वेरी कूल ओल्डर सिस्टर, यू नो, लाइक शी इज नॉट लाइक हे वर्जिनिटी का क्या बात करी, मैं भी जाके मम्मी डैडी को कंप्लेन करती हूँ। वो बैठी श्रद्धा को समझाती है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, तेरे एज वालों को ये सब कूल लगता होगा ना, वर्जिनिटी लूज करना एंड एवरीथिंग, ऐसा इट्स नॉट कूल, ओके, इट्स नॉट कूल। आई फील लाइक वन शुड when they are ready, when they are in love with someone, and when they are ready for a life with that person, okay. Now a lot of people might debate with me or saying that Sonali, getting physical, it's like a need, so you know one does not have to necessarily be in love or you know wait to marry that person or wait to believe that this person is going to be my life partner to lose virginity. You know, you guys can debate with me saying that नहीं यार हमको तो किसके साथ भी करना है हम करेंगे, करो, मेरा ये बिलीफ नहीं है, ठीक है, मेरा ऐसा बिलीव नहीं है, मेरे को नहीं लगता, बिकॉज आई फील लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड अस। दिस माइट बी कंट्रोवर्शियल, आई माइट गेट कैंसल्ड, बट देयर इज अ डिफरेंस। हम इंसान लोग जल्दी अटैच हो जाते हैं एंड यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन व्हेन यू गेट इंटिमेट विद समवन। आई हैव ऑलरेडी मेड वीडियोस ऑन दैट, सो यू नो आई माइट लिंक इट हियर और यू गाइस कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट on my channel. But the thing is ऐसा नहीं होता है, you know, so that has to be very special. You can't just keep like doing jiggy jiggy with everyone, okay. So anyway, पूनम श्रद्धा को समझाती है कि ये सब बहुत नॉर्मल है, so don't worry about it, like try moving on, okay, like do not pay हेड टू दिस। अब ये सब होने के बाद क्या होता है, श्रद्धा वापस से कॉलेज जाती है एंड द नेक्स्ट डे हर फ्रेंड्स दे आर लाइक वेरी सॉरी, दे आर टेलिंग श्रद्धा की श्रद्धा हम लोग वी आर सो सॉरी, वी डिडंट वांट टू बुली यू, इट जस्ट हैपेंड नेचुरली, यू नो, मतलब हम लोग ने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तू वर्जिन होगी करके। अब श्रद्धा को पूनम ने इतना समझाया रहता है, फिर भी कॉलेज जाके उसका दिमाग वापस से घूम जाता है। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट, पीयर प्रेशर, थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो श्रद्धा वापस अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बोलती है कि यार तुम लोग ने सच में लाइक तुम लोग ने लाइक कर लिया है, मतलब हाउ डज इट फील एंड एवरीथिंग। तब दे आर लाइक डू यू वांट टू डू इट विद आरव, शी इज लाइक या आई वांट टू बट आई वांट टू टेक इट स्लो। आ गई बंदी प्रेशर में आ गई, ठीक है। सो अभी उसके फ्रेंड्स लोग दे ट्राई टू पुश हर एंड दे आर लाइक यू नो व्हाट, तू ना थोड़ा सा यू नो वॉच सम सॉफ्ट कॉन वीडियोज, उससे देखो समझेगा कि नो इंटीमेसी कैसी होती है, क्या क्या करना पड़ता है, इट्स वेरी इजी, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये सब देख ले, देखो समझ जाएगा। देन व्हेन यू एंड आरव यू गाइस फाइनली हैव दैट personal private time, it will be easier for you to do things, you know, you do not have to wait for him to do things, you can like control him, you can seduce him and everything. After a point वो दिन रात वही देख के बैठती है, उसका assessments गया खड्डे में, उसका exams गया खड्डे में, वो दिन रात बैठ के वही देखती रहती है, not because she's addicted to it, because she wants to learn the moves, you know, कैसे करते हैं, क्या है, ये है वो है करके। अब ये सब होने के बाद अपने फ्रेंड्स को बोलते कि यार you know what, I feel like you know I am ready, I think I'm ready to lose my V card। अब सब उसको cheer करने लगते हैं कि ये like कर very good, like you know go for it। and for the first time, like you know, see, I'm not defending Shraddha, what she did was wrong, but we are forgetting that she is a teenager। टीनेज वाले एज में सबसे ज्यादा गलतियां होती है। सो अगेन आई एम सेइंग कि उसको जज मत करो, समझो उसका क्या था। वो बंदी यू नो पीयर प्रेशर, एक्सटर्नल वैलिडेशन पे डिपेंडेंट थी एंड कितना उसको लगता था कि यही सही है। वो टाइम में अपना दिमाग इतना चलता नहीं, अपने को लगता है कि यार पहले उसको लगता था कि उसका थॉट प्रोसेस सही है करके, बट जैसे लोगों ने उस पर हंसा, उसका मजाक उड़ाया, शी थॉट कि ओके दे आर राइट एंड आई एम रॉन्ग करके। एंड उसको जब वो वैलिडेशन मिलने लगा दैट्स व्हेन शी फेल्ट वेरी गुड कि ओके यू नो व्हाट, फाइनली दिस सोसाइटी इज एक्सेप्टिंग मी, माय ग्रुप इज एक्सेप्टिंग मी, ठीक है। तो अभी एट दिस पॉइंट एवरीबडी इज चीयरिंग कि हाँ भाई तू कर ले, यू नो। एंड ऑल दीज गर्ल्स एंड दीज गाइज इन हर ग्रुप दे आर ऑल रिकमेंडिंग हर वेयर शी कैन गो, विच रूम शी कैन बुक, व्हाट शी कैन ट्राई, दिस दैट एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये सब श्रद्धा ने बाद में सब होने के बाद रोते रोते पूनम को बताया। जब वो हो रहा था पूनम को आइडिया नहीं था। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग एंड श्रद्धा आरव से बात करती है अबाउट इट, यू नो, आई थिंक लाइक यू नो वी शुड डू इट एंड एवरीथिंग। एंड आरव बहुत ही समझदार बंदा है फॉर हिज एज एंड ही इज लाइक व्हाई डू वी हैव टू डू इट, कांट वी लाइक टेक इट स्लो, लाइक जैसा चल, ओ गॉड इसलिए मैं लिप ग्लॉस नहीं लगाती हूँ, जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं ना, इतना मतलब रश क्यों करना है। समबडी फोर्सिंग यू, लाइक अगर तेरे ग्रुप वाले तेरे को बोल रहे तो प्लीज चेंज योर ग्रुप, बिकॉज दे आर नॉट योर रियल फ्रेंड्स, दे हैव टू एक्सेप्ट योर चॉइस, यू नो, जस्ट बिकॉज दे हैव डन इट दैट डजंट मीन दैट दे कैन फोर्स यू टू डू इट। एंड मेरे ग्रुप वाले मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मेरे ग्रुप में बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं, लड़के लोग हैं हु हैव लाइक यू नो गॉटन इंटिमेट विद मल्टीपल गर्ल्स, दे बोस्ट अबाउट इट, दे फ्लेक्स अबाउट इट। आई डू नॉट पे अटेंशन टू दैट बिकॉज आई बिलीव इन माई वर्च्यूज, यू नो, आई बिलीव what
आई फील इज राइट, एंड मेरे को नहीं किसी और का वैलिडेशन पे डिपेंड होना है। तो बहुत समझाते हैं, तभी श्रद्धा और आरव का झगड़ा होता है। श्रद्धा इज लाइक ऐसे कैसे, आर यू रिजेक्टिंग मी, आर यू टेलिंग मी नो, ये सब बस वो चिढ़ जाती है। एंड आरव इज लाइक नो, आई एम नॉट टेलिंग यू नो, आई जेन्युइनली लाइक यू एंड आई वुड लव टू गेट इंटिमेट विद यू, बट नाउ इज नॉट द राइट टाइम, वी आर नॉट इवन 18, you know, we need to at least finish our college and everything and then we can think about it. कल तुझे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि that I slept with you and I kind of used you or something like that, so please understand करके। at this point वो बहुत चिढ़ जाती है and वो बोलती है I do not want to talk to you, like ऐसा। और जाके अपने दोस्तों को बोलती है कि आरव he such a loser, वो तो मतलब he literally told me this that and everything। deep down उसको ऐसे भी लगता है कि शायद उसने गलत बोला हो, but she just wants to show to her friends कि देख भाई मैं कितनी कूल हूँ, आरव ऐसा बोले तो मैं सीधा आरव को छोड़ दी करके। एंड उसके फ्रेंड्स लोग भी हवा देते हैं उसको, अरे अरे यार बहुत सही की, लाइक आरव लाइक ही इज अ पीस ऑफ शिट, लाइक यू कैन ट्राई any other guy would be lucky to get intimate with you, like fuck Arav, fuck him, who cares about Arav, try some other guy। and then again they push Shraddha, they be like हम तेरा इसके साथ सेटिंग लगा के देते हैं। एंड ऐसा ना ऐसी सब बातें हो रही है ये बच्चों के बीच में, बच्चे ही तो है 16-17 की, क्या बोलूंगी यार मैं, ठीक है। ऐसे सब बातें हो रही है इन लोगों के बीच में। दे आर लिटरली टेलिंग कि यू नो व्हाट, आई थिंक यू शुड डेट दिस गाय फ्रॉम सेक्शन बी, यू शुड डेट दिस गाय फ्रॉम दिस क्लासेस, ओके, बिकॉज ही इज एक्सपीरियंस, अपेरेंटली ही हैड 4 गर्लफ्रेंड्स, सो दे आर ऑल लाइक पुशिंग हो कि भाई तू इसको डेट कर, उसको डेट कर। एक लड़की श्रद्धा को ये भी बोल रही है कि कुछ भी हो जाए श्रद्धा, डू नॉट गो फॉर वर्जिन गाइस, बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट टू डू। फिर एक और बंदी श्रद्धा को ये बोलती कि यार तेरे को पता है श्रद्धा, मैं तो एक बार एक वर्जिन बंदी का डेट पे गई थी मैं एक वर्जिन बंदे के साथ डेट पे गई थी एंड ही जस्ट डिडंट नो व्हाट टू डू, आई लिटरली हैड टू टीच हिम टू डू स्टफ्स एंड इट वाज सो एग्जॉस्टिंग, नेवर अगेन करके। तो अभी श्रद्धा पे और प्रेशर आती है कि ओ माय गॉड यार, व्हाट इफ जो भी बंदे का मैं डेट पे जाऊँ वो भी मेरे बारे में यही सोचे, व्हाट इफ ही थिंक्स कि अरे यार श्रद्धा तो वर्जिन है, मैं क्यों श्रद्धा का करूँ करके। एट दिस पॉइंट वो इतनी पैरानॉइड होती है, शी इज लाइक व्हाट, आई हैव टू लूज माय वर्जिनिटी, कुछ भी हो जाए, बिकॉज देयर इज नो वे आई एम मीटिंग अ गाय एंड ही थिंक्स दैट आई एम अ वर्जिन, लाइक ऐसे सब, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या होता है, शी इज टॉकिंग टू गाइस, उसके क्लास के बंदों से बात करती है, वो जहाँ पे क्लासेस जाती है उसके ट्यूशंस में, वहाँ पे बंदों से बात करती है। बम्बल, टिंडर, ये जो भी सीकिंग वीकिंग ऐप है, क्या मालूम क्या है, वो वहाँ पे सब लड़कों से बात करती है। एंड सबको ना लाइक whenever she meets them she tries to build this very weird fake persona around them that oh I'm this very experienced girl, I'm like 16 but मैंने पूरी दुनिया देखी है, और वो ऐसे सब बात करती है उनके साथ, ठीक है, कि किस तो इज वेरी बेसिक यार, किस पे कौन रुकता है, लाइक I feel like intimacy, like I crave for intimacy, I can't live without intimacy। तो she literally presents herself as this girl who is like very experienced in intimacy, who knows what to do, how to do it करके। अब जो लड़के फ्रीक आउट हो जाते हैं, आरव जैसे जो अच्छे लड़के हैं जिनकी सुन के फट जाती है कि भाई ये लड़की कैसे ऐसा फर्स्ट डेट में ये सब बोल सकते हैं, उन लोग बैकआउट करते हैं। बट ऑल दीज ठरकी गाइज जिनको सेम चीज चाहिए, देयर ऑल लाइक ओह रियली, सो यू आर लाइक, सो यू नो दीज थिंग्स, डू यू नो दिस पोजीशन, डू यू नो दैट पोजीशन, ऐसे सब बात होती है। एंड श्रद्धा फील्स ओ माय गॉड फाइनली आई एम गेटिंग अ गाय, ठीक है। अब एक दिन क्या होता है, एक बंदे है तो फाइनली डिसाइड करती है टू गेट इंटिमेट एंड लूज हर वी कार्ड, ठीक है। उसके फ्रेंड्स लोग उसको बहुत चीयर करते हैं, यार फाइनली दे लिटरली थ्रो अ पार्टी फॉर हर, लाइक पार्टी, आर यू फकिंग किडिंग मी? अरे यार मैं क्या बोलूं, मुझे मेरे को ये पूरा ने बोला, मैं पूरा बोली, पूरा में क्या सुन रही, पूरा मेरे को बोलते यार सोनाली हंस मत यार मेरी बहन है, पर वो भी हंस रही है, ठीक है, ये सब बोल के। मैं बोली भाई ये क्या चल रहा है करके, ठीक है। सो दे थ्रो अ पार्टी लाइक यो बेबी गर्ल, our baby girl is going to lose the V card. I can't understand these teenagers, man. I'm so sorry but I can't. So finally then she meets the guy in that hotel room, ठीक है। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन होता है, एंड मैंने ये सिचुएशन के बारे में ना एक और वीडियो में मेरा बात किया है, एंड द टाइटल इज वजाइनिस्मस, ओके। सो गर्ल्स हु, अभी जो मैं बताने वाली हूँ जो श्रद्धा ने एक्सपीरियंस किया, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट इन अनदर वीडियो। सो जो भी लड़की लोग ने एक्सपीरियंस किया, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट कंडीशन इज, इन डिटेल। अब क्या होता है, जब वो फाइनली मोमेंट आता है where the guy is like getting intimate with her, श्रद्धा फ्रीक आउट हो जाती है। Why? Because that guy is not gentle with her, of course, because he's a typical turkey, like such men they can never be gentle, they will just be like हाँ कपड़ा होता है, चल क्या मतलब I don't know। So ये डर जाती है, she's like bro no, so वो बोलती no please don't, and that guy is like अरे what happened, like I thought you are like pro,
know what to do this, that. She's like, no, I'm asking you to stop, just stop. I don't want to do it with you. And he stops. He's like, okay bro, whatever, like I thought we are here to, you know, have some good time, but if you do not want to do it, I'm out of here, you know, pay the rest of the bill, like I don't care, ऐसा बोल के वो निकल जाते हैं, ठीक है. वो पूरा रात तो वही होटल रूम में रहती है एंड शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, शी इज क्राइंग, शी इज लाइक शिट यार, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं क्या करूं. और वो अपने 2 टक्के के बेवकूफ जिनका दिमाग पैदल है ऐसे दोस्तों को कॉल करती है, कॉल करके रोती है, बोलती है कि अरे गाइस ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे किया. एंड दीज गर्ल्स, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ट्रैश शिडी माइंडसेट दे हैव. दे लिटरली टेलिंग अ बहन तू पागल है कि ऐसे कौन करता है, तेरे को लिटरली हम लोगों ने लॉन्जरी दिया था, तेरे को लिटरली हम लोगों ने ल्यूब दिया था, ये दिया था, वो दिया था, तो वो सब यूज क्यों नहीं की, तेरे को लिटरली खुद को प्रो दिखाना था, तो फ्रीक आउट क्यों हुई, स्टॉप बिहेविंग लाइक अ पेटी गर्ल, कम ऑन यार, तू मतलब तू बड़ी हो गई है, तू ऐसे कैसे कर सकती है, वी लिटरली थोड़ा पार्टी फॉर यू, हम सबने बेट्स लगा के रखा था यू विल लूज योर वर्जिनिटी. एट दिस पॉइंट श्रद्धा इज लाइक, बेट्स क्यों लगा के रखा तुम लोग ने. शी इज लाइक, बिकॉज़ वी बिलीव इन यू बेबी गर्ल, यू गो गर्ल, तू कर करके. एंड श्रद्धा इज लाइक, ब्रो बट मेरे को नहीं करना है करके. तो ये सब बात होता रहता है. एंड दिस पॉइंट श्रद्धा इज लाइक, मैं क्या करूं, इतनी स्ट्रेस में रहती. शी इज लाइक, फक, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, बिकॉज इफ दिस गोज ऑन आई विल नेवर फाइंड द लव ऑफ माई लाइफ, बिकॉज देन यू नो मतलब व्हाट. एंड फिर श्रद्धा ये भी सोचती कि मैं ये सेक्सुअल हूँ क्या, क्योंकि मेरे को क्यों मैं क्यों इंटीमेट नहीं हो पाई, क्या क्या प्रॉब्लम हो गया करके. तो एनीवे वो रात खत्म हो जाती है, वो घर पे आती है एंड वो बहुत स्ट्रेस में रहती है. पूनम मेरे को बोलती है कि ये पूरे फेज में ना श्रद्धा किसी से बात ही नहीं करती थी एंड वो ना पूरा टाइम कमरे में बंद रहती थी, क्या करती थी क्या मालूम, ये सब चलता था. अब एक दिन क्या होता है, श्रद्धा वापस अपने फ्रेंड्स से बात करती है एंड दे आर ऑल टेलिंग द सेम थिंग, यू नो, दैट आजकल के लड़कों को तो वो चाहिए ही. इफ यू डू नॉट गिव देम दैट सेक्सुअल इंटिमेसी, दैट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, बट सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. ऑफ कोर्स इट इज इंपॉर्टेंट, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को फोर्स करो. धीरे धीरे विद टाइम विद द राइट पर्सन हो जाता है. इसका मतलब ये नहीं कि तुम पगला जाओ, ठीक है. तो दीज गर्ल्स आर कन्विंसिंग कि ये सब इंटिमेसी होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, लाइक जस्ट गो फॉर इट, दिस दैट करके. एंड श्रद्धा बोलती है कि यार मैं क्या करूँ. सो दे आर लाइक, यू नो, यू ट्राई मीटिंग मोर गाइज. एंड शी ट्राइज मीटिंग मोर गाइज. वो उनके रूम में भी जाती है बट उससे हो नहीं पाता है एट दिस. एंड द मेन विद whom she tries to get intimate, even they are not good guys, you know, so they kind of blame her. They are like, you know what, are you not like sexually this, like what is this, why are you behaving like that. And then they compare her with other girls, you know, like तू इतना freeze क्यों हो रही है when I'm trying to get intimate with you, मेरी ex girlfriend तो ऐसी थी वैसी थी. इसमें और प्रेशर आता है, इसको लगता है कि यार शिट मेरे में ही कुछ कमी है करके. अब ये सब होने के बाद वो यूट्यूब में बहुत सारा वीडियोस देखती है कि मेरे को ऐसा इशू हो रहा है, क्या है करके. चैट जीपीटी करती है, सब AI टूल्स यूज करती है जस्ट टू अंडरस्टैंड मेरे ये सब क्या इश्यूज है करके. एंड दैट्स व्हेन शी अंडरस्टैंड कि probably the situation is around vaginismus, not probably advanced level of vaginismus. Again watch my video, I have explained very clearly what vaginismus is. But उसको लगता है कि हाँ भाई मतलब मैं फ्रीज हो रही हूँ, इंटीमेसी के नाम पे मैं फ्रीज हो रही हूँ, so only I can fix this करके. And she is very desperate to lose her virginity. And उसके फ्रेंड्स लोग ये भी सब बोलते रहते हैं कि अरे यार, मतलब उसकी एक फ्रेंड ये बोलती है कि जब मैंने मेरा वर्जिनिटी लूज किया ना, I did not bleed because I am not born with hymen. एक फ्रेंड बोलती है कि I bled because I had a hymen. And that is a fact, right? Not every women they are born with hymen. So some bleed, some do not bleed, okay? If you do not believe this, go and argue with the wall, but this is a fact. अब ये सब होने के बाद एक दिन वो इतना वीडियोस देख लेती है that she is like, you know what, I have to do something before meeting the next guy, ठीक है. and वो क्या करती है, she decides to take her own virginity. How? Let me tell you. इतने YouTube videos देखते, इतने tutorials देखते हो on how to expand things down there. And again, girls मैं तुम लोग अच्छे से बोल रही हूँ, ठीक है. कसम से मैं स्क्रीन के उस पर आके चमाट मारूंगी अगर किसने ये ट्राई किया तो, बिकॉज दिस आई एम टेलिंग सो दैट यू गाइस डू नॉट डू दिस, ओके. आई एम नॉट एनकरेजिंग एनीवन, तो प्लीज बकचोदी तो करना मत. आई एम टेलिंग यू, सीरियसली बोल रही हूँ, बकचोदी करना मत, ठीक है. नाउ शी इज लाइक, ओके यू नो व्हाट, अगर मैंने खुद से वर्जिनिटी लूज कर लिया देन मेरा वो फियर चला जाएगा ऑफ you know, getting intimate with the guy and that fear of penetration and everything. So what she does, she watches all these tutorials and she realizes that अगर उसने खुद को pleasure दिया या whatever, things may be a bit easier down there. So first she starts using her, okay, and then she realizes कि okay, it's not that bad, you know, like pain नहीं हो रहा, things are easy, things are better करके. After this she feels like, you know, this is not enough, इससे तो कुछ नहीं होगा. Tomorrow when she has to get intimate with the guy, things can not be just this much in size, things can be a bit this also, so she should not freak out. So next thing she does is online थोड़ा research करके she orders
dilators. Now dilators and vibrators are very different. Again, what a dilator is मैंने वो वीडियो में explain किया, but it is like a medical instrument which you use with the guidance of a gynac if you feel tightness down there and for a lot of medical reasons. Okay, वो बहन की लौड़ी online वो मंगा लेती है, ठीक है, वो मंगा के she starts using that for the next few days. she's using that. अब वो पॉइंट में वो इतना श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई अभी डायलेटर जा रहा है, मतलब आई कैन ट्राई मोर थिंग्स, ठीक है। दिमाग देखो, दिमाग कैसा चलता है इन टीनेजर्स का मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। डायलेटर सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। नाउ शी ऑर्डर्स अ वाइब्रेटर। कहाँ से, पैसे कहाँ से आए, मैं पूनम को वही पूछी, उसको पैसे कहाँ से आए, वो बोलते मुझे नहीं पता यार, पॉकेट मनी जमा कर ली होगी, मेरा खुद का इतना चल रहा था कि मेरा ध्यान नहीं था उस पर। इसके लिए अगर तुम्हारे घर पे टीनेजर है, ध्यान रखो, ऐसा सब हरकतें नहीं होनी चाहिए, कंट्रोल मत करो बट ध्यान रखो, ठीक है। वाइब्रेटर मंगाती है, वाइब्रेटर यूज करती रहती है, एंड एट दिस पॉइंट शी फील्स ओ ओके ग्रेट, यू नो, नाउ आई फील मोर कंफर्टेबल डाउन देयर, दिस दैट। ये सब जो कर रही है ना गाइस, अब तुम लोग मुझे बोलो कि तू जज कैसे कर सकते, बट नहीं, तुम लोग कॉन्टेक्स्ट देखो ना, वो क्या कैसे कर रही है, क्यों कर रही है, डजंट मेक सेंस, ठीक है। अब वाइब्रेटर यूज करने के बाद शी फील्स है आई कैन गो फॉर बिगर ऑब्जेक्ट्स। बिगर ऑब्जेक्ट से तुम लोगों को समझ गया होगा कि उसने क्या ट्राई किया है। आई एम गोइंग टू जस्ट से 2 वर्ड्स, ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। क्यूकुम्बर एंड ब्रिंजल। डोंट आस्क मी हाउ, डोंट आस्क मी व्हाई, शी डिड इट। अब बिकॉज अगेन ट्रिगर वार्निंग, ओके, आई ट्राई टू बी लेस एक्सप्लिसिट, बट बिकॉज शी used some vegetables, first of all it's not hygienic, she used some vegetables which were a lot bigger in size than her. She bled. Once she bled, she got happy initially thinking, oh I lost my virginity. अपने दोस्तों को कॉल करते हो, मेरा हाइमेन टूट गया guys, I'm bleeding and they're celebrating. क्या अक्कल की अंधी लड़कियां, इतना गाली देने का मन करे, they're all celebrating, woo baby girl, yo करके। She's bleeding and then she doesn't stop bleeding. एक पॉइंट के बाद तो अपने दोस्तों को बोलते कि गाइस मेरा ब्लीडिंग बंद क्यों नहीं हो रहा है। उसके फ्रेंड्स बोलते कि यार अगर तेरा हाइमेन टूट गया तो थोड़ा ब्लीड होके बंद होना चाहिए। शीला नहीं, मेरा ब्लीडिंग बंद नहीं हो रहा है। अब उसको पेन फील होता है। पेन फील होने के बाद वो बहुत उसका यहाँ तक, उसका लिटरली यहाँ तक उसको पेन फील होके दुखने लगता है। अब वो फ्रीक आउट होती है, फ्रीक आउट होके पैनिक होती है, पैनिक होके उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, उसकी बहन को बुलाते हैं, एंड दे आर लाइक व्हाट द फक डिड यू डू, व्हाट इज ऑल दिस करके, एंड वो डर डर के बोल देते कि मैंने वो सब चीजें मेरे अंदर डाली। Of course, she's rushed to the hospital, emergency ward. Doctors पूछते क्या हुआ, वो explain करती है। Doctors, of course, they judge her, but they do help her. थोड़ा बहुत पेन के लिए इंजेक्शन देते हैं, वहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं, एंड डॉक्टर्स जो गायनेक होती है एंड ऑल दैट, दे से दैट बिकॉज उसने फोर्सफुली इंसर्शन किया है, ऑब्वियसली उसका हाइमेन भी ब्रेक हुआ, बट बिकॉज उसने इतना फोर्स में इंसर्शन किया, इट काइंड ऑफ थ्रस्टेड, एंड बिकॉज ऑफ दैट वहाँ का स्किन थोड़ा टेयर हो गया, एंड हेंस द ब्लीडिंग एंड एवरीथिंग। नथिंग मेजर, नथिंग सीरियस, बट दिस नॉट समथिंग वन शुड डू। एंड वो गायनेक ने एक चीज बोला जो मुझे बाद में पूनम ने बोला, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि व्हाट श्रद्धा डिड, इट्स नॉट इवन सरप्राइजिंग एनीमोर, क्योंकि दैट गायनेक टोल्ड कि दिस नॉट द फर्स्ट केस। ये टीनेजर्स में इतनी चुल रहती है, उन लोग कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट डाल के ट्राइंग एंड टेस्टिंग करते रहते हैं। और फिर एक डॉक्टर बोली, एक पेशेंट मेरे पास आई थी, शी ट्राइड पुटिंग सम परफ्यूम का बॉटल, द स्मॉल परफ्यूम का बॉटल, क्या वो सब चीजें अंदर डालने की है? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दैट, इज इट दैट डोरेमोन का पाउच कि तुम चीजें अंदर डालोगे निकालोगे, लाइक व्हाट द फक इज दिस, ठीक है। ऑफ कोर्स अब ये सब होने के बाद श्रद्धा बेड रेस्ट पे है एंड शी इज रेस्टिंग। अफवाह फैल गया एंड पूरे एरिया को मालूम है कि लड़की ने ये सब किया है करके। एंड अभी उसके पेरेंट्स थोड़े उसको हाउस अरेस्ट पे रखे, उसको ऑब्वियसली स्कूल से तो उसको छुट्टी मिला ही है, एंड अभी यू नो पेरेंट्स हैड टू टॉक टू द प्रिंसिपल, बिकॉज प्रिंसिपल के कान तक भी ये बात गया, एंड देन पेरेंट्स ने ना थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ के बोला कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं करके, बिकॉज शी वॉज अबाउट टू गेट एक्सपेल्ड फ्रॉम दैट कॉलेज। बट देन ऑब्वियसली पेरेंट्स ने थोड़ा सा हाथ वाथ जोड़ा, थोड़ा सा समझाया, देन प्रिंसिपल को भी दया आ गया, तो शी वाज लाइक चलो ठीक है करके। अब ये बेड रेस्ट पे है और उसके वो 2 कौड़े के दोस्त लोग उसको देखने तक नहीं आए। कैसे दोस्त लोग हैं इन लोग, हाँ, इतना इंकरेज कर रहे थे, गो बेबी गर्ल, यो देखने नहीं आए, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है ना,
क्या हो गया? हाँ, वी कार्ड, लूजिंग वी कार्ड तभी तो बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे, अब क्या हो गया? जाके देखो, शी इज नॉट फीलिंग वेल, गो मीट हर. So yeah, this was what happened with her. She took her own virginity, and it could have been fatal, but probably before the major damage happened, she was rushed to the hospital, and thanks to the doctors, they took good care of her. मेरा दिमाग में अभी भी वही चीज़ घूम रहा है कि वो डॉक्टर ने बोला कि नो, ये मेरे साथ ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कुछ ना कुछ अंदर डालते हैं. तो इसका मतलब क्या है? तुम लोग क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? गर्ल्स, आई एम टॉकिंग टू यू, लाइक व्हाट द फक आर यू गाइस डूइंग मैन? थोड़ा दिमाग चलाओ ना, पीयर प्रेशर में मत आओ. मैंने लिटरली वर्जिनिटी पे एक और वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने लिटरली ये शेयर किया था, बिकॉज मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुआ था वेयर आई फेल्ट दैट प्रेशर. You know, when I was 21, 22, people around me were like, oh, you're not a virgin, oh my god, how old, you're so pretty. तो मैं pretty हूँ तो इसका मतलब क्या? मैं खुद को मतलब क्या मतलब समझ रहे हो तुम लोगों में क्या बोल रहा है? I'm trying to not abuse because I've promised someone that I will not abuse, okay, and someone मतलब my mom, but yeah, समझा ना तुम लोग को क्या हो गया करके. सो प्लीज, दैट वाज अ स्टोरी. शी इज डूइंग बेटर नाउ. अभी प्रोबेबली शी विल रेज्यूम गोइंग टू द कॉलेज सून, बट अभी उसको, वो पूनम को वही बोलती कि दीदी मुझे कॉलेज नहीं जाना, सब हंसेंगे, सब मजाक उड़ाएंगे. बट वो इंसिडेंट के बाद उसका कॉलेज में प्रिंसिपल ने थोड़ा ये सब चीज़ें और स्ट्रिक्ट कर दी. पहले एटली लड़का लड़की साथ में घूमते थे, बट अभी वो भी अलाउड नहीं है. नहीं, साथ में घूमना भी नहीं है. एक क्लास में अगर लड़का लड़की है तो अलग अलग बैठना है, साथ में बैठना भी नहीं है. ये सेक्शन लड़कियों का, ये सेक्शन लड़कों का. कोई साथ में लंच नहीं करेगा, कोई कॉलेज के बाहर तक कोई साथ में नहीं. इनफैक्ट कॉलेज के बाहर का जो भी प्रेमाइसेस है वहाँ पे भी लड़का लड़की साथ खड़े नहीं रह सकते. मतलब इट्स सैड, बट आई थिंक ठीक है. होपफुली इसकी वजह से थोड़ा चुल कम हो जाए लोगों में. सो या, दैट वाज अ स्टोरी अबाउट हाउ श्रद्धा, out of peer pressure, ended up taking her own virginity, ended up losing her virginity. Don't do that. Don't be like Shraddha. I really hope, I know that this is a phase. When she grows up, she will realize कि मैंने क्या चुतियागिरी किया. मेरे साथ भी ऐसा होता है, बहुत सारे इंसिडेंट्स मैंने भी किए एज अ टीनेजर. सो अभी मैं सोचती हूँ कि भाई क्या ही किया करके. ऐसा नहीं किया, बट जस्ट टेलिंग यू. तो या, दैट वाज अ स्टोरी. सावधान रहे, आप सतर्क रहे, स्प्रेड द वर्ड. सो इफ यू हैव अ टीनेज सिस्टर, इफ यू हैव अ कजन हु इज अ टीनेजर, टीनेज डॉटर, जस्ट स्प्रेड द वर्ड सो दैट दे आर अवेयर दैट ये सब करना नहीं है. ठीक है, पीयर प्रेशर में बहुत कुछ करते हैं लोग, थोड़ा खुद का दिमाग यूज करना है. यू शुड ऑलवेज बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर वर्ड्स, ओके. लाइक तुम्हारा जो भी वैल्यूज है, अभी मेरे भी बहुत सारे थॉट प्रोसेस है जो बहुत लोग डिसएग्री करते हैं, बट आई नो कि मेरे थॉट प्रोसेस सही है बिकॉज इट्स नॉट अनएथिकली रॉन्ग एंड इट्स नॉट हार्मिंग एनीवन. सो इट्स फाइन, यू नो. सो या, दैट वाज अ स्टोरी. आई डोंट नो यार क्या बोलूँ मैं, बट या, व्हाटएवर. टेक केयर. चलो, बाय बाय.